Whenever you hear RBI Grade B 2026, you always wonder, is it too early to talk about it? अभी तो बहुत टाइम पड़ा, आराम से बात करेंगे, आराम से प्रिपेयर करेंगे. Sorry my friends, I don't agree with this statement because I believe if you are planning to attempt RBI Grade B 2026 examination, once the notification is out, then this video is going to save your 1 year and 1 attempt. Because I'm not saying that it's not possible to clear this examination once the notification is out, but if we have adequate time in our hand, let's utilize it, let's work for it in the right direction. Because according to me, I believe RBI Grade B doesn't reward the last minute efforts, rather it reward early clarity, slow depth and structured thinking. So in this particular video, I'll give you 6 to 8 months of framework that actually works and it will help you to clear this examination. So what all things you are going to learn in this particular video? First, we'll talk about what to study, how to study and when to start. But before answering these 3 questions, I would like to discuss a very important point, that why most of the candidates or aspirants, they fail to clear this examination. The first reason is random preparation without understanding the exam design. Second is over dependency on free PDFs, notes, telegram material whatsoever, जहां से जो मिले बटोर लो, पढ़ो मत, उससे कोई फायदा होगा नहीं. Third is ignoring descriptive paper till the last moment. You always believe कि यार descriptive तो लिख ही लूंगा, let's try to read more, let's try to learn more, I will be able to write a good descriptive answer. That's not going to happen. Next is you are studying everything instead of what actually asked by RBI. And the last point is, if you are starting late or you are inconsistent in your preparation, then in that particular case, it will be difficult for you to clear this examination. So this video is basically to give you direction, in which direction you should approach this exam, up till what depth you should cover the content, and what should be the strategy you need to follow in order to remain consistent to clear this particular examination. First thing, RBI पूछता क्या है? RBI का एग्जाम क्लियर करने के लिए पता क्या हो, समझ क्या हो, चाहिए क्या, क्या कैपेबिलिटीज चाहिए, क्या टैलेंट चाहिए, उन सारी बातों पे बात करते हैं. सबसे पहली चीज याद रखिएगा, RBI एक ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपकी मेमोरी को चेक करता. हाँ, हालांकि RBI में काफी फैक्ट्स, डेटा बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट वो फैक्ट्स, वो डेटाज एक कैलकुलेटिव थॉट के आसार पर या आधार पर आरबीआई अपने एग्जामिनेशन में पोर्ट्रे करता है, विच वी विल बी डिस्कसिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सबसे पहली चीज क्लियर कर लो कि अगर आप आरबीआई एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, यू शुड बी अ रेगुलेटर, यू शुड बी an officer before you sit for the examination. What I'm trying to say, you should know what actually RBI Grade B demands and prepare in the right direction. So first is concept clarity, especially in case of finance and economics. Second is ability to connect the theory with real world policy, especially for management. Third is analytical thinking, not just learning. That means you should have capacity to come up with your own thoughts, your understandings, your conclusion regarding a particular topic which has been asked in the examination. Then you can come up with clear answers, that means well articulated answers, which should portray that yes, an officer figure is writing an answers and the individual is capable enough to start operations with RBI. Last but not the least is you must have good awareness about the India's financial system. I will be discussing what to study, what not to study one by one in much detail. सबसे पहले जिसको नहीं पता उसे बता दूं, RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता. फेज 1 100% ऑब्जेक्टिव है, 200 मार्क्स का पेपर है, बट क्वालिफाइंग नेचर है. वंस यू क्वालिफाई फॉर फेज 1, देन यू सेट इन फेज 2, जहां पे 3 पेपर 100 मार्क्स ईच, टोटल इज 300. पेपर 1 एंड पेपर 3 ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों है, दैट इज ESI एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. लेकिन अगर हम पेपर 2 की बात करें, दैट इज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, विच इज 100% डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. जैसे ही आप फेज 2 क्लियर करेंगे, यू विल बी सिटिंग इन द इंटरव्यू ऑफ 75 मार्क्स एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी क्रिएटेड आउट ऑफ 375 मार्क्स. तो मेंस या आप कहें फेज 2 और इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट, बट फेज 1 इज इंपॉर्टेंट टू एंटर into the phase 2 stage, but the marks whatsoever you are scoring in phase 1 is not going to hamper or not going to support you to get into the final merit list to start your career with RBI as a grade B officer. Now the question is, कितने दिन पहले हम RBI के लिए प्रिपेयर करें? देखो यहाँ पे ना मैं बहुत क्लियर नोट पे कहूंगा,
आरबीआई के लिए आप कभी भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन. इवन आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स हु हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम 3 to 4 months before the examination date, and they have also managed to clear this examination. I agree to the statement, but the question is, right now we are in December 2025. Obviously 2025 complete hone wala and it's beginning of 2026, and most of you must be deciding, most of you must be talking to yourself कि अब अगले साल में क्या करना है. We call it as New Year resolution. तो क्यों ना इस बार अगर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन आरबीआई ग्रेड बी है, और यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, और यू वांट to work with the regulator of the nation, then rather than waiting for the notification to be out, rather than waiting for 3-4 months left in the examination, let's start bit early, because if you are starting bit early, it will obviously give you an upper edge over the other candidates who are going to appear for the same examination. And I believe, keeping in mind, दिसंबर में अगर हम बैठे हैं तो हमारे पास 6 से 8 महीने हैं टू राइट डाउन द आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जामिनेशन. उसी माइंडसेट के साथ, उसी थॉट के साथ आई हैव crafted this particular video where I will be discussing with you how to study, what to study in next 6 to 8 months. And trust me guys, आज अगर start कर लिया, chances are very high to clear this examination. But जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे, chances कम होते जाएंगे to clear this exam, क्योंकि you have ample to study, ample to retain, ample to analyze. Then only you will be in a position to clear this particular examination. So वाई दिस ड्यूरेशन, तो मैंने उसके लिए कुछ 4 पॉइंट सोचे जो शायद आपको समझ आएंगे. पहला, डीप अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है आरबीआई के केस में फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्पेशली फाइनेंस. जब तक पता नहीं होगा आरबीआई के फंक्शंस क्या है, तो कैसे आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस को, आरबीआई के नोटिफिकेशंस को या आरबीआई के सर्कुलर्स को समझोगे, दैट विल बी वेरी टफ फॉर यू. सेकंड इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पार्ट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑब्वियसली इट इज 66% ऑफ योर फेज 2 एग्जामिनेशन, एंड डिस्क्रिप्टिव नीड्स टाइम. आज पढ़ा, कल लिखना शुरू कर दिया, इट्स नॉट सो इजी, इट टेक्स टाइम. इफ यू वांट टू राइट अ गुड आंसर, that means you should be a good reader, you should have ample of content with you so that you can portray yourself, you can articulate yourself in a well structured manner. नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स. मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आरबीआई की एग्जामिनेशन में जो लेटेस्ट मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं वो ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स दे आर इंटर रिलेटेड. और अगर हमने जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, देन वी विल हैव अ काइंड ऑफ फोमो बिफोर वी सिट इन द एग्जामिनेशन कि कहीं ना कहीं यार मैंने करंट अफेयर्स मार्च में शुरू किए या फरवरी में शुरू किए, तो मेरे जो पेंडिंग करंट अफेयर्स है अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा. सो रादर देन keeping that FOMO in your mind, let's get started with the current affairs preparation from January 2026 onwards. Last but not the least is जितना ज्यादा समय आप इन्वेस्ट करते हैं for preparing for a particular examination, that gives you maturity with respect to the understanding of the topic, with respect to the understanding of the organization, its operations, its functions, which will help you in interview. That maturity will reflect while writing a good descriptive answer as well as while answering the interview questions as well. A point ये है कि sir, what to study? So what to study में we all know that we have 3 things to study. First one is phase 1, second is ESI, third is finance and management, fourth is I believe descriptive English, which most of you don't agree with me. आपको लगता है descriptive English तो हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं भी मानता हूं हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के साथ हमारा टारगेट 70+ मार्क्स का है. इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन फॉर फेज 2 पेपर 2, योर टारगेट शुड बी 70+. और अगर आपको वो टारगेट अचीव करना है, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ. तो फेज 1 ESI, finance, management, as well as English descriptive. Now, if I talk about phase 1 में we all know that we have quantitative aptitude, we have English, we have reasoning, we have general awareness. Quantitative aptitude में मैं ये नहीं कहूँगा कि सब पढ़ो, सब पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, सब पढ़ना ईजी भी नहीं होगा, सब चीज़ों को याद भी नहीं कर पाओगे, ध्यान में भी नहीं रख पाओगे. बेटर ये है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये आइडेंटिफाई कर लो कि ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं. DI हर बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 एरियाज मस्ट है जिनको आप टारगेट रखेंगे. दीज विल बी योर टारगेट एरियाज विच आर गोइंग टू अटेम्प्ट while sitting in the examination. But to attempt DI in a more confident manner, you must have basic understanding of the arithmetic topics like percentage, ratio, simple interest, compound interest, time and work, profit and loss. And yes, we have time, we can manage it. So let's start our preparation with arithmetic.
जैसे ही अरिथमेटिक के बेसिक टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, देन विल फोकस ऑन डीआई, will master DI, will master quadratic equation, will try to practice as much as we can for number series so that we could get a safe score to clear the sectional cutoff. In case of reasoning, guys, logical reasoning, which include inequality, syllogism, blood relation, directions, very important. इसके बिना हिलेगा ही नहीं एग्जाम, इसको तो करना ही करना है. उसके साथ साथ critical reasoning is very important. And lastly, your puzzles, your sitting arrangements, which include linear, circular, floor-based puzzles, ये आपको क्लियर करने होंगे. याद रखना, अगर आपको कट ऑफ ही क्लियर करनी है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए भी पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व किए बिना, सॉल्व किए बिना कट ऑफ क्लियर करना विल बी रियली वेरी टफ. सो बी रेडी विद दिस कि पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो कट ऑफ क्लियर करना टफ होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद पजल्स, लेट्स स्टार्ट विद सिटिंग अरेंजमेंट. जब ये हो जाए, come down to inequalities, along blood relation, directions, and then come to critical reasoning वाला पार्ट. अगर इतना कर लिया, reasoning will be sorted. अब बात आती है इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि आपका फेज 1 में भी पूछा जाता है. फेज 1 के इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. पहला, ग्रामर रूल्स. एक बार बैठो, ग्रामर रूल्स पढ़ लो. पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो फ्रॉम डे 1. जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू एरर डिटेक्शन, रिलेटेड टू सेंटेंस रिप्लेसमेंट और आइडेंटिफाई द रॉन्ग फ्रेज इन दी सेंटेंस, जो भी जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रैक्टिस करो. सेकंड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पजल बेस्ड क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, जंबल सेंटेंसेस जो हैं उन्हें आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं, उसके लिए योर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो रीडिंग वाला पार्ट कहां से आएगा? थर्ड इज वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंग्लिश का जो मेजर चंक है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर पैराजम्बल्स या फिर वोकैबुलरी, इसको हम कहां से इंप्रूव करेंगे? सर, इट विल बी इंप्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ अ initiative which will not only help you in English language, it will help you in other areas as well. वो क्या है? That is newspaper. अब न्यूज़पेपर वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना, ना पॉसिबल है, ना पढ़ पाओगे. 2 न्यूज़पेपर फॉलो करो, एक जनरल, एक फाइनेंशियल. जनरल में द हिंदू पकड़ लो, फाइनेंशियल में फाइनेंशियल एक्सप्रेस पकड़ लो या बिजनेस स्टैंडर्ड्स पकड़ लो. उन दोनों ही न्यूज़पेपर्स में यू हैव टू आइडेंटिफाई द आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल सेक्शंस जो कि हर दिन आपके न्यूज़पेपर में आते हैं. एंड इन दोज लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट of the articles or editorials which are important for our RBI grade B exam, which means जो कि हमारे ESI या फाइनेंस के सिलेबस से कहीं ना कहीं लिंक्ड है. फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी पे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल रिलेशन पे आर्टिकल है, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है. पॉवर्टी पे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है. एम्प्लॉयमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है. हेल्थ इश्यूज पे आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ ESI एंड फाइनेंस. उन आर्टिकल्स का स्क्रीनशॉट लो. आफ्टर टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, पेस्ट दैट स्क्रीनशॉट ऑन योर वर्ड, ऑन अ वर्ड फाइल. वर्ड फाइल पे पहले उस आर्टिकल को पढ़ो. पढ़ने के बाद राइट अ क्विक समरी of that article as well as extract the important information, the datas and figures which are given in that article, which will help you to use the same data while writing a good descriptive answer as well as while answering the MCQs. अब इससे फायदा क्या हुआ? आपके राइटिंग स्किल्स डे 1 से इंप्रूव होने शुरू हुए, आपकी रीडिंग्स बढ़ी और उसके साथ साथ यू आर लर्निंग न्यू वर्ड्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड यू आर कलेक्टिंग डेटा. अब ये 3 चीजें कैसे हेल्प करेंगी? पहली, इट विल हेल्प यू इन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज पैराजम्बल and even the vocab related questions. It will help you in general current affairs या general awareness part, जहां पे कोई data या facts या figures पे कोई question आए, you will be able to answer that. उसके अलावा it will help you to write a good descriptive answer in all the 3 papers, paper 1, paper 2 and paper 3 of phase 2. This I call it as 5-in-1 strategy. सिर्फ articles पढ़ने हैं, editorial section पढ़ना है, वो भी relevant वाला part. And trust me, it will going to help you in 5 ways, in 5 different areas. Next is your general awareness. General awareness के लिए मैं सिंपल सी बात करूंगा. जनवरी मंथ से स्टार्ट कर लो. 3 तरह के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं. एक है जनरल करंट अफेयर्स, जो आपके बैंक एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं. अगर आप बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई भी बैंक एग्जाम का जो डेली करंट अफेयर्स शो है, दैट यू हैव टू फॉलो फॉर जनरल करंट अफेयर्स. सेकेंड इज यू हैव टू कवर योर PIB for ESI related current affairs, which is helpful in phase 1 and phase 2 for sure. And third is your finance current affairs, especially focusing on RBI related current affairs and banking and financial world current affairs. अब sources क्या होंगी? For general current affairs, follow any daily banking current affair, I would say, show which is available on our platform as well.
सेकेंड इज मनीष सर्स मंडे वेंसडे फ्राइडे जो उनका सेशन होता है पीआईबी करंट अफेयर्स, एंड थर्ड वन इज फाइनेंस करंट अफेयर्स ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ऑन द सेम यूट्यूब चैनल एट 5 PM। तो मंडे टू सैटरडे 5 PM रोज एक सेशन विच विल हेल्प यू टू कवर पीआईबी फाइनेंस, और उसके अलावा एक डेली बेसिस पे करंट अफेयर सेशन जनवरी से ही स्टार्ट कर लो विच विल कवर योर जनरल करंट अफेयर्स वाला पार्ट, ताकि इस बार अगर आरबीआई ने दोबारा जनरल करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर इट प्रीटी वेल। अब बात आती है सर फेज 2 की। फेज 2 में भी लोग फाइनेंस के लिए ज्यादा वरी करते हैं। आई हैव seen this, students are very worried about finance, but trust me guys, finance is still doable। मैं पढ़ा दूंगा, मैं समझा दूंगा, आप पढ़ भी लोगे, आप समझ भी लोगे। प्रॉब्लम है ईएसआई। ईएसआई का सिलेबस उठाओ, बहुत इजी है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लो, बहुत इजीली समझ आता है। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट इज द पॉइंट वेयर वी गेट इनटू अ टफ सिचुएशन। लिखें क्या? क्योंकि ईएसआई का स्पेशली जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज, इट्स नॉट द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द नॉलेज। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉवर्टी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कोई नहीं पूछता। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू यू हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज टैकलिंग द करंट सिचुएशन। तो ये भी मैंने आपसे बहुत एक बेसिक बहुत आसान सा क्वेश्चन पोर्ट्रे किया जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बट अगर आप 2025 के जो फेज 2 के ईएसआई के क्वेश्चंस हैं उन्हें आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा किस लेवल का एग्जामिनेशन यहां पूछा जाता है। तो ईएसआई में सबसे पहला काम है बेसिक समझ लो, कॉन्सेप्ट कवर कर लो। कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद करंट अफेयर्स करो, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, मनीष सर हैं आपके पास, ही इज कवरिंग एवरीथिंग। और इन दोनों चीजों को जब आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर्स, अब इनको करो कंबाइन। कंबाइन इन द सेंस कॉन्सेप्ट जो सीखा, करंट उसका क्या स्टेटस है, इन दोनों को कंबाइन करो और एनालिसिस करो कि क्या था पास्ट में, क्या है आज, क्या इंपैक्ट हुआ, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स थे, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स थी, हाउ वेल द स्कीम्स हैव परफॉर्म्ड, क्या और गवर्नमेंट कर सकती थी या करना चाहिए इन द नियर फ्यूचर इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज इश्यूज। तब जाकर यू विल बी रेडी फॉर योर ईएसआई पार्ट। तो पहले दिन से याद रखना ईएसआई 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 इज द हार्ट ऑफ दिस एग्जाम। अगर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी, इट विल बी डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो यहां पे अंडरस्टैंड कर लो पहले कोर कॉन्सेप्ट को, फिर करंट अफेयर्स, फिर दोनों को ब्लेंड करो। ब्लेंड करने के बाद अपना एनालिटिकल थिंकिंग को मेच्योर करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट अ गुड ईएसआई डिस्क्रिप्टिव आंसर। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के केस में आई वुड से मैनेजमेंट इज रियली डूएबल। उसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप पूरा का पूरा सिलेबस वर्ड बाय वर्ड कवर कर रहे हैं, और जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं ट्राई टू लिंक एवरी मैनेजमेंट टॉपिक विद द रियल वर्ल्ड एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लीडरशिप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप का आपके पास रियल वर्ल्ड एग्जांपल होना चाहिए विद रीजनिंग, क्यों, कैसे, कब। ठीक, इतना पार्ट अगर कर लिया, मैनेजमेंट इज सॉर्टेड। रिवाइज करो, मॉडल्स को ध्यान में रखो, शॉर्ट नोट्स बना लो, हैंड रिटन नोट्स बना लो, बार बार रिवाइज करो, मैनेजमेंट हो जाएगा। फाइनेंस के केस में पहले ज्यादा फाइनेंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझो। जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बेसल नॉर्म क्या है, सीएआर क्या है, आरडब्ल्यूए क्या है, दैट इज रिस्क वेटेड एसेट क्या है, या फिर मैं अगर कहूं आपसे इंसॉल्वेंसी क्या है, सार्फेसी एक्ट क्या है, जब ये सारा बेसिक पार्ट समझ आ जाएगा देन अगेन एप्लीकेशन फाइनेंस का, दैट इज द करंट अफेयर्स। क्वेश्चन फाइनेंस में करंट अफेयर्स रिलेटेड आएगा, इट विल बी अगेन एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, बट डिफरेंस क्या है, फाइनेंस में एनालिटिकल स्किल्स उतनी रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज इट इज जनरल फाइनेंस एज पर आरबीआई, लेकिन ईएसआई में एनालिटिकल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वेल you are looking into a scheme or how well you're looking into the India's social issue scenario and what could be your suggestion to overcome it. It's going to have a great weight in your answer in case of ESI. तो ESI में analytical thinking को improve करना बहुत important. In case of finance, concept समझ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिए, दोनों को ब्लेंड कर लो, योर टास्क विल बी डन। बाकी जो थोड़ा बहुत एनालिटिकल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है या उससे इंपॉर्टेंट जो कनेक्टिंग द डॉट्स वाला पार्ट है फाइनेंस के केस में, दैट आई विल टेक केयर ऑफ स्पेशली इन माय यूट्यूब फाइनेंस करंट अफेयर सेशन इटसेल्फ, जिसमें पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उस कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर्स पे लेके जाऊंगा, फिर करंट अफेयर्स के बाद कैसा डिस्क्रिप्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसका ब्लेंडिंग कैसी होगी, उसकी एप्लीकेशन कैसी होगी, आई विल डू इट फॉर यू, डोंट वरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर English descriptive. In case of English descriptive, I would
गिव यू अ सजेशन कि जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं या एडिटोरियल पढ़ रहे हैं ऑन डेली बेसिस, यू आर राइटिंग डाउन द समरी. While writing down the summary, you should analyze that how well you have written your summary in comparison to the article, which means structure क्या आपकी summary का सही है, articulation आपने सही किया या नहीं, कि आपकी summary से exact message deliver हो रहा है या नहीं. अगर इतना काम आपका हो गया, क्योंकि आप पहले दिन से कर रहे हो, आज से अगर आप करोगे, you will be writing the final answer after 8 months. Then in 8 months, it's quite obvious if you are bare minimum practicing 2 articles a day, तो हमारे पास कितने महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. लेट्स एक्सपेक्ट कि एग्जामिनेशन अगस्त में होगा. यू हैव मोटे मोटे 7 to 8 months. 8 months की अगर मैं बात करूं, 240 दिन है. 240 में अगर आप 200 दिन भी प्रैक्टिस करें, 2 भी प्रैक्टिस करें, 400 समरी आपने लिखी होंगी, 400 आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे. हो ही नहीं सकता कि आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में बढ़िया स्कोर ना कर पाओ. बहुत चांसेस है कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में जो ऐसे आए वो आपका कोई पढ़ा हुआ टॉपिक आए. बहुत चांसेस है कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए वो हिंदू से आ जाए, वो आपका पढ़ा हुआ हो. और प्रेसी के लिए तो आप पहले दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव शुड बी सॉर्टेड विद 70+ टारगेट इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो आइडल टाइम नहीं होता किसी भी एग्जाम का. अगर मैं 2 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी दूंगा कि आप बचे हुए टाइम में एग्जाम क्लियर कर लें. लेकिन अगर आपने सोच लिया यू हैव टू अटेम्प्ट आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, तो भैया ना तो मार्च अप्रैल की वेट करो, ना ही नोटिफिकेशन की वेट करो. यही टाइम है, न्यू ईयर, बिगिनिंग ऑफ 2026, टेक द रेजोल्यूशन, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे. क्योंकि जितना जल्दी करोगे, यू नो दैट इट्स गोइंग टू हेल्प यू. इसमें कोई नुकसान तो है नहीं. अब इसमें अगर आप 6 to 8 months के टारगेट के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक रिलैक्स्ड, एक सेटबैक पोजीशन पे आराम से काम कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने यही 2-3 महीने मिस कर दिए, देन यू हैव टू hit the paddle with full throttle, which will impact your preparation and understanding and concept clarity. तो उसमें foundation phase मैंने बनाया first and second month, जहाँ पे you will be understanding the core concepts of ESI, finance, quant, reasoning, English. Then you have next 3 to 5 months. In the 3 to 5 months, which means पहला और दूसरा महीना आपने ये किया, तीसरे से 5वें महीने तक you will be integrating that. Integration का मतलब QRE जो भी पढ़ा, कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश जो भी पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस की. ESI कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए. करंट अफेयर्स पढ़ते हुए ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हो चुके हैं इन द स्टार्टिंग. और अब उसे ब्लेंड करना कि कैसे कॉन्सेप्ट को करंट अफेयर के साथ ब्लेंड करके याद करना है ताकि एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा जाए. और फाइनली लास्ट का जो आपका 6th to 8th मंथ होगा, दैट मीन्स समहाउ फ्रॉम जून टू अगस्त, इस महीने में, इन 3 महीनों में, 2.5-3 महीनों में वी विल बी टारगेटिंग एग्जाम प्रिपरेशन. एग्जाम प्रिपरेशन टारगेट करने का मतलब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे. वी विल बी राइटिंग फुल फ्लेज डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ऑन रेगुलर बेसिस. वी विल बी अटेम्प्टिंग जनरल अवेयरनेस on regular basis. We will be attempting quizzes of general awareness on regular basis from past January onwards, January 2026 onwards. और हम quant, reasoning, English को time bounded manner में प्रैक्टिस करेंगे so that we will become exam ready before we sit for the examination. तो यहाँ पे phase 1 foundation phase, phase 2 integration, whatever we have studied we will integrate it, and now we have the exam focused point. अब कोई पूछता है कि सर कितने घंटे पढ़ूं, मैं कहूंगा भैया पूरा दिन पढ़ लो जब टाइम है. नहीं तो बेयर मिनिमम 6 to 8 hours यू शुड इन्वेस्ट. फेज 2 पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, 3 to 4 hours अ डे. रीजन है कि जितनी जल्दी हो सके कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लो. कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ट्राई टू इंटीग्रेट इट and try to build your analytical skills so that you can write a good descriptive answer. Second phase of your day should be करंट अफेयर्स, जिसमें 1 से 2 घंटे जाएंगे क्योंकि आपके 2 सेशंस रोज होंगे, एक जनरल करंट अफेयर्स का डेली सेशन और एक पीआईबी या फाइनेंस करंट अफेयर्स का सेशन. उसके अलावा यू हैव टू राइट और यू हैव टू कंप्लीट दैट आर्टिकल एंड एडिटोरियल वाला सेक्शन एज वेल विच इज इंपॉर्टेंट. तो 2 घंटे तो बेयर मिनिमम लगेंगे करंट अफेयर्स पे. उसके बाद कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश 2 घंटे इन्वेस्ट कीजिए ऑन रेगुलर बेसिस. दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. अब इसमें मेरा सजेशन ये है कि डोंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली. इट्स योर कॉल, बट मुझसे पूछोगे तो नो. एक कॉन्ट पकड़ लो, एक फाइनेंस पकड़ लो. कॉन्ट कंप्लीट होगा तो उसी स्लॉट में इंग्लिश फिट कर देना, इंग्लिश कंप्लीट होगा तो रीजनिंग फिट कर देना. दूसरे स्लॉट में जहां फाइनेंस पकड़ा था, जब फाइनेंस कंप्लीट हो जाए ईएसआई पकड़ लेना, ईएसआई कंप्लीट हो जाए मैनेजमेंट पकड़ लेना. बट ट्राई टू इन्वेस्ट 6 to 8 months फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months. सॉरी, ट्राई टू इन्वेस्ट 6 to 8 hours डेली फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months in order to clear this examination. अब कोई बात पूछे कि सर मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया
उन्होंने क्या किया है वो मैं आपको अभी बताता हूं. दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये समझो कि दिस इज द गोल्डन 5 रूल्स विच यू मस्ट नो इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम, बिकॉज दिस इज being taken not by me, or I'm not giving it from my end. It is something which I have inculcated, I have understood from the toppers in my past experience, or even I would say the same strategy I used back in 2016 when I myself cleared this exam. डोंट चेज एवरी सोर्स. जो सोर्स आपने फॉलो कर ली, पहले दिन डिसाइड कर लिया, ट्रस्ट दैट सोर्स एंड फॉलो इट रिगरसली रादर देन फॉलोइंग डिफरेंट सोर्सेज ऑन रेगुलर बेसिस. रिवाइज एज मच एज यू कैन. बेसिक है, जो आज पढ़ा रिवाइज इट विद इन 24 आवर्स. The same content should be revised within 7 days. Same content should be revised within 28 days. If you are following this 24 hours, 7 days and 28 days rule, trust me, most of the चीजें याद रह जाएंगी, कभी भूलोगे नहीं. अगला है try to write the answers regularly. जो मैंने आपको solution दिया है इसका, articles, editorials पढ़ो, उसकी summary लिखो. That will धीरे धीरे automatically your writing skills will improve. Then we have analyze the RBI language and tone, whatever questions which have been asked in the past. क्यों पूछा गया, कैसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को पूछने का रीजन 2025 में क्या था, ऐसा क्या स्ट्रक्चर था, ऐसा क्या सिनेरियो था 2025 में कि आरबीआई ने ये क्वेश्चन पूछा. ट्राई टू थिंक व्हाई एग्जामिनर इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड द करंट स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी. दैट विल हेल्प यू टू identify the important topics or important areas before you sit for 2026 exam. Last is think like an officer, not like a student. ऑफिसर की तरह सोचने का मतलब है जब भी कुछ पढ़ो लिमिटेड पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो. जब भी कुछ लिखो लिमिटेड इंफॉर्मेशन दो लेकिन बहुत वेल आर्टिकुलेटेड मैनर में दो, so that everyone whosoever is reading, whosoever is listening should get to know कि yes, you are having adequate knowledge, not ample, adequate knowledge to justify the requirement of the given job for which you have appeared in the interview, for which you have appeared in the writing part. अब 3 तरह के एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं. बिगिनर भी होंगे, प्रोफेशनल्स भी होंगे और रिपीटर्स भी होंगे. तो अगर हम बिगिनर हैं तो बिगिनर के केस में पहले तो 1-2 हफ्ते, आई वुड से टुडे व्हाट इज द डेट, टुडे इट इज 26th है ना, तो 26th है. बिफोर 31st ऑफ डिसंबर पहले तो अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर लो, कौन सी सोर्स फॉलो करनी है, किसे फॉलो करना है, किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना. जिस दिन आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी आप समझो आपका बेसिक डाउट या बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन दूर होने में बहुत टाइम लग जाता है इफ यू आर अ बिगिनर. वंस यू हैव selected the source, once you have selected the platform, just follow it rigorously and follow the strategy which I have just given you. My strategy which I have just given you is basically for the beginner only. अगर आप प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो जो मैंने 6 से 8 घंटे का स्केड्यूल दिया है उसे आप कट शॉर्ट करके 3 to 4 आवर्स कर लो, और बाकी का जो आपका बैकलॉग्स है ट्राई टू कवर अप इन on Saturdays and Sunday so that you can justify your preparation in the right direction. But if you are a repeater, तो रिपीटर के केस में आपने ऑब्वियसली सिलेबस पूरा ऑलरेडी कवर कर ही लिया, तो सिलेबस को अब रिवाइज करने की बजाय उसमें प्रैक्टिस करो और ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव डन रॉन्ग इन द लास्ट ईयर, व्हाट वाज रॉन्ग विद योर स्ट्रैटेजी. उन सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. इफ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम ही समझ नहीं आ रही, तो दिमाग बंद कर लो, भूल जाओ कि आपने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है पहले. जस्ट फॉलो द स्ट्रैटेजी आई हैव गिवन यू, बट इन अ मोर आई वुड से बट इसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करो लेकिन थोड़ा पेस के साथ, थोड़ा फास्ट आप फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज जब आप पढ़ने बैठेंगे आपको धीरे धीरे चीजें याद आने लगेंगी, स्पेशली द कॉन्सेप्चुअल पार्ट. तो बिगनर के लिए प्रायोरिटाइज कर लो पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फिर फोकस करो ऑन लर्निंग हाउ टू थिंक, नॉट जस्ट मेमोराइज. फर्स्ट सक्सेस इज अचीविंग क्लैरिटी नॉट कॉन्फिडेंस. तो पहले क्लियर हो जाओ फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो उस केस में अपना एक फिक्स डेली टाइम शेड्यूल फिक्स कर लो. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा मैंने कहा वीकेंड्स को यूटिलाइज करो एंड अवॉइड गिल्ट ड्रिवन प्रिपरेशन की नहीं हो पा रहा, जितना हो पा रहा है कीजिए. टाइम है, अगर आज स्टार्ट करेंगे तो रोज के 3-4 घंटे इन्वेस्ट करके भी क्लियर कर पाएंगे. रिपीटर के लिए आई वुड अगेन से कि भैया अगर आप पहले एग्जाम दे चुके हैं, पहले ये देखो कि आपका कौन कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपने पहले नहीं पढ़ा, पहले तो उसे इंप्रूव करो. फिर अपने स्किल्स को इंप्रूव करो, वेदर इट इज आंसर राइटिंग और स्किल्स रिलेटेड टू डेटा और फैक्ट मेमोराइजेशन, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे फॉलो करो. अपनी सोर्सेस को रिड्यूस कर लो, रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा जो भी पढ़ा है, रादर देन रनिंग बिहाइंड द न्यू टॉपिक, रादर देन रनिंग बिहाइंड द न्यू कंटेंट. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अगर आप इस एग्जाम को इस गिवन
फॉर्मेट के साथ फॉलो करेंगे, whether you are working professional, whether you are average student, whether you are first time aspirant, you will be able to clear it. But only if you start early, then you study selectively, you practice writing on regular basis, and you follow a structured study plan. So dreaming of RBI is easy, but preparing like an RBI officer is what makes the difference. That would be my final message for you all. अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने दुनिया भर की प्रॉब्लम बता दी, उनका सॉल्यूशन भी बता दिया, लेकिन क्या कोई आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसे अगर हम फॉलो करें, उस वन स्टॉप सॉल्यूशन की मदद से अगर हम उसे फॉलो करें तो हम कहीं ना कहीं इस एग्जामिनेशन को बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे? देन आई वुड से यस, आई हैव अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, दैट इज टेक्स्टबुक. वी हैव लॉन्च्ड ऑफिसर्स बैच. इट्स अ फाउंडेशन बैच फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026 और ये बैच स्टार्ट होंगी, इसकी क्लासेस 6 जनवरी से. तो यू हैव ऑलमोस्ट 10 डेज अब माइंड बनाने के लिए कि क्या करना है, नहीं करना. अगर आरबीआई करना है तो ये लास्ट चांस है. लेट्स स्टार्ट अर्ली, लेट्स क्लियर दिस एग्जामिनेशन, एंड द बेस्ट पार्ट इज अर्ली बर्ड एनरोलमेंट हैज स्टार्टेड. यू कैन फिल द फॉर्म इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड ऑब्वियसली जितना जल्दी आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे, जितना जल्दी आप प्रिपेयर करना चाहेंगे, जितना जल्दी आप इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को सब्सक्राइब करके इस बैच में एनरोल करेंगे, यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. So thank you so much guys for your time, and I believe this video is going to help you to clear the RBI Grade B 2026 examination. Good luck. God bless you all.